Hello, ma'am. Am I audible to you? Ma'am, we cannot hear you. हेलो मैम, क्या सुन पा रही हैं? हेलो, Yes, ma'am. Now you're a bit audible. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, Okay, ma'am. So, shall we start now? या मैम. Okay. So, a very good evening to everyone present here. I, Shada Sadia, on behalf of my Hey Foodie family, welcome you all to the talk show. Today, we have a very special guest amongst us, Razia Khatun. Razia Khatun is a food lover, vlogger, and a national level gold medalist in archery. She is a self taught home cook with a passion for home cooking and baking. Her journey in the kitchen started with the help of her grandmother, and now she is a successful video creator with over 1.5 million followers in all the major social media platforms. She has also started her online and offline cookery classes and teach students online and offline as well. Her students take courses from all over the world. Ma'am, I again extend a very warm welcome to you. ओके मैम. Now the session will be carried forward by Vidisha. Over to you, Vidisha. Yeah, thank you so much. Hello, ma'am, and a very warm good हाय, evening to you. Welcome हाय, to हाय Healthy मैम. Chat with Hey Foodie. So थैंक यू सो मच before, मैम. yeah, ma'am. So before we begin with our chat show, let me tell you something about what is Hey Foodie. So Hey Foodie is a food service provider. We believe that this time requires that some people out here come to know about what healthy food is and its importance. The food ओके which मैम. we prepare is 100% homemade and made in full safety of hygiene and stuff. So on the behalf of Hey Foodie, I welcome you to the healthy chat with Hey Foodie. So ma'am, tell us about your journey of becoming a successful video blogger and having such a big fan following in all the social networking sites. मैम, ऐसा तो कोई अभी सक्सेसफुल है नहीं. सबके हिसाब से जो सक्सेसफुल का जो पैमाना होता है वो अलग होता है. बस एक जर्नी है, बस चले हैं, बस चलते ही जा रहे हैं. और रहा बात यूट्यूब करियर का या फूड लवर का, मैंने 2016 से एक्चुअली 2016 तक मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था. जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया कि मैं एक नेशनल लेवल आर्चर हूँ. स्पोर्ट्स के साथ साथ कुकिंग में बस अचानक से कैसे इंटरेस्ट आया, एक रेसिपी ट्राई की, बस सबको पसंद आया. उसके बाद से एक होता ना कि फूड लवर, बस उसके बाद से जो एक जर्नी स्टार्ट हुई वो अभी तक चल रही है. चाहे वो एक सेकंड, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हेलो हो, हर तरफ हम हैं और हर तरफ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, हर तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है. जब मुझे पता है अभी हमारा सेकंड क्लास भी चल रहा है हेल्दी फूड के ऊपर, जैसे हमारा ये टॉपिक है. आजकल जिस तरह के लोग खाना पसंद कर रहे हैं, तो हमारा हेल्दी सेशन भी होता है जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग तरीके से हेल्दी चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं, हेल्दी चीजों को बनाना सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं. Yes, ma'am. Please continue. हेलो, Hello. हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, आ रही है. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Can you hear me? Hello. हेलो, Yes, ma'am. Can you hear me? या मैम. So sorry, I'm facing some network issues this side.
Yeah, so that is how Okay. your journey started, right? Yeah, ma'am. Okay. So, ma'am, you have a very good. Hello, can you hear me? हाँ, yeah, ma'am, I'm hearing you. Yeah. So, tell us something about the journey of archery and then the gold medal, and how did you go so far? Hello, ma'am. Yeah, hello. हेलो मैम, आवाज आ यू रही आर है? ऑडिबल मैम। आवाज आ रही है मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? आ हाँ रही है मैम, मैम, आपकी आवाज आपकी अच्छे आवाज से आ आ रही रही है। ओके ओके मैम, प्लीज मैम क्वेश्चन और एक बार रिपीट करिए मैम। Yeah. So, मैं कह रही थी कि you are also a gold medalist in archery. या Tell मैम। us your journey in the sports field as well. अपने sports field में भी journey का थोड़ा जिक्र कीजिए हमसे। ओके मैम। और स्पोर्ट्स मैम, एक्चुअली मैंने जो स्पोर्ट्स का करियर स्टार्ट किया था 2013 में। और ये मैंने दीपिका कुमारी, जो हमारी अभी मतलब आप क्या कह सकते हैं पद्मश्री हैं वो, मतलब एक तरह से आर्चरी में सबके लिए वो एक आइकॉन है हम सभी के लिए। तो मैंने सबसे फर्स्ट मैंने उन्हें अपने कॉलेज में देखा था, तो उनसे देख के एक्चुअली मैं इंस्पायर हुई थी। मेरी फर्स्ट मीटिंग उनके साथ में हुई थी, तो उनसे देख के मैं इंस्पायर हुई थी। तो 2013 में मैंने आर्चरी शुरू किया और 2016 तक मैंने 3 साल कंटिन्यू आर्चरी खेला, जिसमें मैंने नियर अबाउट 33 मेडल्स मैंने जीते हैं, जिसमें 5 नेशनल मैंने जीते हैं। नेशनल में 3 एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मैंने जीता है। और मतलब इसमें आपका नेशनल लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हो, अपना इंटर स्टेट हो, चांसलर ट्रॉफी हो, मतलब ओवरऑल मैंने 3 साल में मतलब बैक टू बैक परफॉर्मेंस दी है और 3 साल में मैंने नियर अबाउट 33 मेडल्स मैंने जीते हैं। और बस ये एक जर्नी था, छोटा सा जर्नी था, लेकिन छोटे से टाइम पे मैंने अपना बेस्ट दिया और जितना दिया वो एक मेमोरेबल पॉइंट है मेरे लिए। और बस आर्चरी के साथ-साथ में एक्चुअली मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करने को अच्छा लगता है। तो जैसे पढ़ाई के साथ में मेरा एक आर्चरी का जर्नी स्टार्ट हुआ, उसके साथ-साथ में फिर मैं कुकिंग के फील्ड में आई। तो यहाँ पे भी अभी मेरी एक बहुत ही अच्छी जर्नी चल रही है। तो मतलब टाइम टू टाइम मेरा हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। और ऐसा नहीं कि कोई चीज़ बस शुरू करके खत्म करना है, वो चीज़ नहीं है। बस कोई चीज़ शुरू हो रहा है तो मुझे उस जगह पे खुद को प्रूव करना है। तो जैसे स्पोर्ट्स के एक छोटे से करियर पे मुझे जितना लगा, मेरा जितना मेहनत था, जितना एबिलिटी था, मैंने अपना उससे 100% दिया और उसपे मुझे रिजल्ट मिला। तो इसी तरह से कुकिंग में हूँ। बिल्कुल मैम, दिस इज हाउ, इसी तरीके से इंसान धीरे धीरे सारे सक्सेस को पाता है। एंड बहुत ही अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में जान के। एंड वी मस्ट से दैट आपके बारे में जान के वी आर इवन प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड लेडी लाइक यू। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर यू शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके मैम, थैंक यू। मैंने सुना है कि आपको ये कुकिंग के फील्ड में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो ऐसी कौन सी डिशेस हैं जो आप बनाती हैं और वो आपके हाथ के बने हुए बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आती वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, और जैसे कि प्रोफेशनली तो बेकिंग में लोगों को मेरे हाथ के केक बहुत पसंद है। और इतने पसंद है कि मैंने अपना फर्स्ट कुकिंग क्लासेस जैसे मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहला मेरा बेकिंग में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने बस पहले ही मैंने केक बना के जब लोगों को टेस्ट कराए तो इतना पसंद आया कि मतलब उसी से ही मेरा एक तरह से आप कह सकते हैं बिज़नेस इसी से ही मेरा स्टार्ट हो गया। जैसे कि अभी आपको पता है कि जैसे कुकिंग क्लासेस लेती हूँ और या फिर लोगों को सिखाती हूँ, सीखने-सिखाने का जो इंटरेस्ट है, वो मेरा बेकिंग से ही स्टार्ट हुआ है। बस वो एक रेसिपी थी ब्लैक फॉरेस्ट केक जो मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचाई है, चाहे वो बिज़नेस लेवल पे बोलो या किसी पे भी। तो वो एक रेसिपी ऐसी है जो मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचाई है, ये नाम शोहरत जो भी बोलो, वो सिर्फ़ वो एक रेसिपी मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। जी मैम। तो ये बेकिंग आपने कब शुरू की थी और कब सीखना शुरू किया था और कितना टाइम लगा था आपको?
और सीखने का तो अब कह सकते हो बचपन से जो बेकिंग का जो शौक है वो मुझे बचपन से, चाहे वो केक खाने का हो या फिर बनाने का हो, ये बचपन से ही शौक रहा है, लेकिन कभी वैसे सीख नहीं पाई। प्रोफेशनली जो है वो मैं 2016 से मैं मतलब बेकिंग फील्ड में प्रोफेशनली हूँ, प्रोफेशनली सीख रही हूँ, और 2017 से मैं प्रोफेशनली सिखाना चाहती हूँ। ओके, सो ये आप वेल हमारे ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं वो आपके लिए पढ़ना चाहूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आया, ओके मैम आपने क्या कभी कोई वेजिटेबल यूज करके केक बनाया है? कोई वेजिटेबल यूज करके, जी हाँ बनाया है मैंने। वो जो वेजिटेबल है वो कैरेट है, कैरेट का यूज करके, कैरेट है, बीटरूट है, वैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिनका यूज करके हमने बनाया है। ओके मैम। मैम मैं जानना चाहूंगी आपसे कि जब बात कुकिंग फील्ड की होती है एंड इस फील्ड में मास्टरी की होती है, तो आपको क्या लगता है इसमें हम वुमेन आगे हैं या मेल्स आगे? मैम ये आजकल मैम कंपटीशन, लोगों को लगता है कि मेल आगे होने चाहिए या फीमेल आगे होने चाहिए। अभी आपको पता है कि अभी आज आज के डेट में सब बराबर हैं, तो यहाँ पे मेल और फीमेल का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, सब अपने अपने तरीके से अपने कंपटीशन में है। तो पहले टाइम था कि लड़कियों को आगे होना चाहिए, लड़कों को आगे होना चाहिए, लेकिन अब तो मैम सब बराबर है हर फील्ड में, सबको बराबर के मौके मिल रहे हैं, सब चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, हर जगह पे सब बराबर लेवल पे है, तो किसी के लिए कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, तो ये सोच ही गलत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल मैम, आई गेस आपका ये आंसर जो लोग सुन रहे हैं उनको अच्छा एक मैसेज देगा, एंड दैट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी जी जी। सो मैम, जब बात हेल्थ की होती है तो देर आर डिफरेंट मिथ्स एंड फैक्ट जो लोग बोलते हैं, या फिर जो डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो बोलते हैं। तो हम्म। अगर मैं पूछूं कि आपके हिसाब से एक हेल्दी पर्सन के हम्म। अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है जो उसको हेल्दी कहलाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैम प्लीज और एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए, थोड़े से वॉइस ड्रॉप हो रहे हैं। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ हाँ मैम, प्लीज मैम क्वेश्चन रिपीट करिए। हम बोले आपके हिसाब से किस इंसान को हम हेल्दी कह सकते हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसे हेल्दी कहने के लिए? किसी पर्सन में? हाँ। मैम अभी का जो टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से किसी को भी ऐसे हेल्दी बोलना, क्योंकि आजकल जो छोटे बच्चे भी होते हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, आजकल छोटे बच्चे, हर इंसान कोई ना कोई सिचुएशन से कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंट परेशान है, मुझे जहां तक लगता है। ऐसे किसी को बोलना है कि आप हेल्दी हैं अनहेल्दी हैं वो तो ये है, लेकिन अभी का जिस तरह का मैम दौर चल रहा है, इस पे खुद को हेल्दी रखना एक सही एक डिफिकल्ट टास्क आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जिस तरह से चेंज हो रहा है। अ, अब किसी भी इंसान को पूछ लो, कोई ऐसे बोलेगा नहीं कि मैं पूरा फिट हूँ या मैं पूरा हेल्दी हूँ, या चाहे कोई छोटे बच्चे को भी पूछ लो वो नहीं बोल पाएगा कि मैं पूरा हेल्दी हूँ या फिट हूँ। कुछ ना कुछ लोगों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ ऐसे डिजीज हैं, या कुछ ना कुछ अपनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो ऐसे किसी को बोलना है कि आप पूरी तरह से फिट हैं या हेल्दी हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि अभी का जैसे दौर है, इस टाइम पे खुद को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसे आज का हमारा थीम भी है कि हेल्दी टॉपिक के ऊपर बात करना, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हेल्दी चीजों को सपोर्ट करना है, क्योंकि आजकल जिस तरह से मतलब अनहेल्दी चीजों का जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट बढ़ता जा रहा है, बच्चों को खास तौर पे जिस तरह से अट्रैक्ट किया जा रहा है, वैसे चीजों से बच्चों को बचाना, या चाहे बड़े लोग हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि अभी का जो टाइम है इसमें बहुत सारी अनहेल्दी चीजों को प्रमोशन दिया जा रहा है, बट मैम जी जी। हम बड़े लोग तो समझ भी सकते हैं, बच्चों को कैसे उस चीज से रोका जाए? देखिए मैम, सबसे पहला चीज है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि बड़े लोग समझते हैं, लेकिन बड़े लोग समझ के सबसे ज्यादा गलती करते हैं, दिक्कत ये चीज है। समझ बच्चों को तो वो समझदारी नहीं है, वो हम समझते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो समझ के भी वो गलती करते हैं, ये थोड़ा बुरा लगता है। सबसे पहला चीज कि जो घर पे हम जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, या एक
मदर को आप देख लीजिए, बच्चों के लिए स्कूल के लिए वो टिफिन दे रही हैं, तो सबसे वो सोचती है कि सबसे आज इजी क्या बनेगा, पास्ता। देखिए आजकल हर बच्चों को मैं देख रही हूँ टिफिन पे, मैम प्लीज जो सबसे इजी हो जाए, जो 2 मिनट में कुकिंग हो जाए, आप वो रेसिपी हमें दीजिए। पास्ता हो गया, मैगी हो गया, मैगी पे वेराइटीज चाहिए। तो जितने भी पैकेज फूड आप देख लो, ज्यादातर जो मॉम्स है उसको ज्यादा प्रेफर करती हैं। ठीक है, चाहे वो मैदे से बने कुछ प्रोडक्ट हो या कुछ भी ऐसी चीजें हो जो इंस्टेंट हो जाए। तो ये चीजें थोड़ा सा मेरे हिसाब से बहुत दिक्कत करता है, और बड़ों को ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा समझने की जरूरत है, उसके बाद ही बच्चे समझेंगे। जैसे कि सपोज बच्चों को पिज्जा खाना बहुत पसंद है, बच्चों को ब्रेड पे कुछ जैसे क्रीमी चीज खाना पसंद है, तो आप उसे हेल्दी वर्जन में आप कैसे आप अपने बच्चों को आप सर्व करोगे, वो आपके हाथ में है। जैसे कि मैदे से बहुत सारे पिज्जा बनते हैं, हम सभी को पता है, तो उसे हम आटे से कैसे बनाएं। जैसे मल्टीग्रेन आप आटा यूज कर सकते हैं, जैसे ब्रेड बना रही है तो ब्रेड पे भी मल्टीग्रेन यूज कर सकते हैं, आटा यूज कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड बना सकते हैं अगर बच्चों को ब्रेड खाना पसंद है। तो वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन है कि उस हिसाब से आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको थोड़ा अपना जो डेली का लाइफस्टाइल है थोड़ा सा मैम चेंज करना पड़ेगा, आपका शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपके बच्चों को क्या पसंद है। जिस तरह से हम स्कूल जाते हैं बच्चे, तो उनका एक रूटीन होता है, तो खाने के हिसाब से भी मेरे हिसाब से बच्चों को वैसा रूटीन होना चाहिए कि आज मेरे बच्चों को हेल्दी मैं ये चीज खिलाऊंगी, नेक्स्ट डे हेल्दी ये खिलाऊंगी। तो वो चीज वो एक मदर में होना चाहिए। आजकल तो भाग दौड़ भरी जिंदगी में होता है कि कैसे हम कोई भी चीज जल्दी कैसे हम बना के दें, तो वो सोच जो है वो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मैम। बहुत बढ़िया बात कही मैम आपने। में ये एक्चुअली में ये होता है, जैसा आपने की कहा कि लोग जल्दी के चक्कर में, बट कई बार ऐसा भी होता है कि जो पेरेंट्स है वो जंक फूड खाने से बच्चों को रोकते हैं, बट उनका जो वो लालच होता है वो जंक फूड के लिए, वो उनके फूड की तरफ उनको खींचता है। तो इसके बारे में एक बच्चों को, बच्चे अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, बच्चे क्या, हम अगर यंग जनरेशन या यूथ की भी बात करें, तो वो अपने आप जी को कैसे इन चीजों से थोड़ा अवॉइड करके बचा के रख सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, आज के जमाने में मैम जितना भी अनहेल्दी चीज है उसका हेल्दी वर्जन भी है। ठीक है मैम, जितना भी चीज आप देखो मार्केट पे, मैं एक पिज्जा का ही एग्जांपल ले रही हूँ। पिज्जा तो मार्केट पे इजीली मिलता है, लेकिन उसका अगर हम घर पे बनाना अगर सीखे, या घर पे भी आप देखो आजकल हर जगह पे मैम हर चीज का हेल्दी वर्जन है। जैसे हम व्हाइट शुगर यूज करते हैं, हम उस जगह पे ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं। और कोई भी चीज मैम मार्केट पे ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों को लुभा रही है और वो चीज आप घर पे नहीं कर सकते हैं, ऐसा है ही नहीं है। आप हर कुछ मैम घर पे उतना अट्रैक्टिव तरीके से आप बना सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो। बस वही चीज है कि मैम आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा, जो घर पे मदर्स हैं उनके हाथ में है, आप अपने बच्चों को किस तरह से, आप बाहर की चीजों से कितना बचा रहे हो, और बाहर की चीजों से अट्रैक्ट होने से किस तरह से आप उन्हें सेफली बचा पा रहे हो। वही चीज अगर आप घर पे करके दोगे तो मुझे लगता नहीं कि बच्चे उस तरह से बाहर जिद करेंगे। क्योंकि मैम मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, घर पे जो चीज बनता है इतना टेस्टी इतना हेल्दी, तो वो अलग चीज मैं बोलूंगी। अगर आप सही तरीके से बनाओ, सही तरीके से प्रेजेंट करके बच्चों को दो, तो बाहर का वो खाने ही छोड़ देंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैम देना चाहूंगी। जैसे मेरे क्लासेस में केक का स्पेशली मैं बोल रही हूँ, क्योंकि होम बेकर हूँ, तो जो भी केक वगैरह बनते हैं ज्यादातर मैं हेल्दी ही प्रीफर करती हूँ। लेकिन जितने भी मैं अपने कस्टमर हो या मेरे जितने स्टूडेंट क्लासेस लेके जाते हैं, मतलब कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं है कि मतलब जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, या फिर जो यहाँ से सीख के जाते हैं केक बनाते हैं, उनके भी जो कस्टमर होते हैं वो बाहर का खाना छोड़ देते हैं। तो वो चीज आपके हाथ में है, आप अपने बच्चों को किस तरह का टेस्ट आप उनके मतलब उनके जबान पे कैसा टेस्ट आप चढ़ा रहे हो। अगर शुरू से आप बाहर का ही चीजें आप उन्हें खिला के अगर वैसा अगर आप माहौल दोगे, तो वो बाहर की चीजों से ही अट्रैक्ट होंगे।